the session. So we are moving to the next problem now. So this is your problem. This you may see in your notes as well. Fine. So first thing that we do for this is support reaction calculations. Okay. The first thing that you'll do is finding out support reaction calculations. Right? क्या दिया है? UDL दिया है, UVL दिया है. Right? That's it. That's the only thing given. क्या करना है? सबसे पहले सपोर्ट रिएक्शन कैलकुलेशन करना है. सपोर्ट रिएक्शन कैलकुलेशन से पहले we should know what type of support it will be. So what is the type of support here? इधर बैठो. At A it is, at C it is, right? So can you calculate the support reactions? Start. First, start with the support reaction calculation. So support reaction calculations, you can pay attention to the screen. The first thing that we'll do here would be, this is HA, RA and RC, right? This is a sign convention. Fx is equal to 0, therefore HA is equal to 0. Simple. Then summation of Fy is equal to 0, right? Therefore, RA plus RC is equal to UVL plus UDL, okay? Then we'll be getting RA plus RC is equal to 47. Then moment at A will be equal to 0. So this is the equation which I have already mentioned on the board, right? Okay. So if you work out that, RC comes out to be 25.27 kilonewton, right? And then if you put that into the above equation, you'll get RA is equal to 21.73 kilonewton. So these are the answers. ठीक है, इतना करोगे 2 मार्क्स मिलेगा. ठीक है, क्लियर. चलो आगे क्या करना है? एसएफडी बनाना है. सबसे पहले क्या करेंगे? शेयर फोर्स कैलकुलेशन. ठीक है, everybody will pay attention to the screen. Stop your writing work. Now it's a combination of everything, right? So we'll have to look at very carefully how we can calculate the SFD. ठीक है, कहां से स्टार्ट करेंगे? You can start from either of the side. I'll be taking from that side. मतलब I'm looking from your side, so it will be left hand side only. So if we look at the left hand side from here, okay? So then what do you observe on the left hand side? What is the observation at A? What is the type of load it is? A पे, हाँ, but point load भी है ना, reaction का point load भी है. So whenever there is a point load, we'll have to take left and right. So left and right करेंगे, ये हमारा sign convention है. So we'll say shear force at A to the left, which will be equal to 0. Starting का क्या आना चाहिए? 0. Ending का क्या आना चाहिए? 0. ठीक है, tally होना चाहिए. Now I'll give you the direct shortcut. ठीक है, done. उसके बाद shear force at A to the right. Right पे जब हम लोग आएंगे तो I'll be standing here. I'll be standing here, so you'll be able to observe that. ठीक है, so if I observe that on the left hand side क्या मुझे दिखेगा? सब लोग जान दो अभी. Shear force at A to the left. ठीक है, मतलब यहाँ पे देखना है. I'm standing here. यहाँ पे देखो. Now red line representing the section. तो यहाँ पे जो force है क्या? 9. So it is 0. So shear force at A towards right. तो right मतलब क्या? ये मेरा जाएगा सेक्शन यहाँ से यहाँ पे आएगा. लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा फोर्स है? आ रही है कोई अपवर्ड. ठीक है, यहाँ पे देखो सेक्शन यहाँ पे देख रहा हूँ मैं. लेफ्ट हैंड साइड गोइंग अपवर्ड, इट इज पॉजिटिव. So this will be positive. What is the quantity of that? It is
तो यहाँ पे देखो LV at point D, ठीक है। So rather than writing at left and right, I'll just put shear force at B. So my section will be here. You can look at the left hand side, you can look at the right hand side. ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं कौन सा फोर्स है, RA, उसको वैसे ही लिख दूंगा 21.73. Now remember, this is shear force, not the movement. So just have to add the value of forces. ठीक है, तो ये पॉजिटिव आया, इसका क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, which is half into 9 into 6, मैं बोलूं 27 किलोमीटर। ठीक, ज्यादा कैसा है, बोलो ना कितना है, माइनस 6.5। कैलकुलेटर है ना तुम्हारा, माइनस 27 किलोमीटर, इज इट माइनस? यस, ठीक है, तो इतना आया। देन वेयर वी नीड टू जंप, आई विल बी जंपिंग ऑन टू द सी पे जंप किया, पॉइंट आउट दिखा ना, तो पॉइंट आउट दिखा तो क्या करेंगे, लेफ्ट करेंगे, ठीक है। अभी देखो, आई विल से शियर फोर्स एट सी टू द लेफ्ट, ठीक है। यहाँ पे आंसर कितना आना चाहिए पता है, 25.27 आना चाहिए, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में देखो क्या क्या है, सबसे पहले तो ये है पॉजिटिव नेगेटिव बोलो, 21.73 माइनस आएगा इसका, दैट इज हाफ into 9 into 6 माइनस इसका which is 4 into 5, बोलो कितना, I'll write here as 25.9 आया। मुझे कैसे पता इतना आएगा, बिल्कुल मुझे पता है कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, राइट। अभी देखो ये हुआ, क्या करना है, we'll go to the right hand side, so I'll be standing here now, my section will be here, look at the left hand side, देखो, अभी देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या क्या है तुम्हारा, RA है, ठीक है, यहाँ पे लिखा है RA, इसका माइनस होगा, माइनस, उसके बाद ये भी होगा, ये होगा, ठीक है। तो इसका पहले से आया कितना पहले, तो मैं वही लिख लेता हूँ, रादर देन डुअलिटी की लगेगा लगेगा, और उसमें मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा, प्लस 25.27 इधर ओके, समझा। देखो शियर फोर्स में बार-बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अभी देखो ये जो वैल्यू है कितना आया, -5.27, तो यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं, राइट, तो राइट डायरेक्टली -5.27 माइनस 4 into 5, ठीक है। तो रिपीटेशन को अवॉइड करो, समझने के लिए, और मेरे जो पॉइंट बोला उसको वैलिड करने के लिए मैंने सॉल्व किया, दोबारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, कैन स्ट्रेट अवे कैरी फॉरवर्ड द वैल्यूज। क्लियर, लेट अस क्रॉस चेक द आंसर दैट वी हैव। So shear force at A, right side it will be 21.73. Then we'll be having shear force at B, which is 21.73 minus UVL. So it comes down minus 5.27, right? Shear force at C, left, क्यों left किया, because of point load. तो left में कितना आया, this, so minus 25.27, and at shear force it will be 0. ठीक है, ड्रॉ करेंगे, right? चलो, ड्राइंग करते समय पहले तो हम लोग रेफरेंस लाइन लेंगे। अभी देखो तुम लोग रेफरेंस लाइन लोगे ना, तो जस्ट मेक श्योर कि तुम्हारा मैक्सिमम वैल्यूज कितना है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यूज कितना है, 25, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यूज कितना है, 25। तो क्या हो जाएगा, कभी हम लोग डायरेक्ट जितना नीचे ले लेते हैं, ए की ड्रॉ करने के लिए जगह नहीं होता, या फिर बी के प्रॉब्लम हो जाता है, या फिर कभी-कभी इतना ऊपर ले लेते हैं कि ये मैक्सिमम वैल्यू आप काट नहीं है। तो जस्ट एक जजमेंट लेके करना कि यहाँ पे 21 तक जाना चाहिए स्केल, और यहाँ पे 25 तक स्केल जाना चाहिए, ठीक है। मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ तो मेजर करके ड्रॉ करो, बट इट शुड बी पिक्टोरियली इजी सो दैट 25 ग्रेटर देन 21, इतना ही करना है, ठीक है। इसलिए मैं स्केल वेल का नहीं बोल रहा हूँ, अदरवाइज एक्चुअली में स्केल करके ड्रॉ करना है, तो स्केलिंग वेलिंग फैक्टर हम लोग हटा देंगे, जस्ट उसका रिप्रेजेंटेशन क्या है अपने को देखना है, ठीक है। सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करेंगे, आई विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम ए पॉइंट। सो ए पॉइंट पे क्या है, 0, ए पॉइंट पे ही दूसरी वैल्यू कितना है, पॉजिटिव 21.73, राइट। उसके बाद बी पे कितना वैल्यू है, नेगेटिव, ठीक है, तो इट विल बी -5.27, राइट। उसके बाद कहां पे जाना है,
सी पे, सी का लेफ्ट पॉइंट देखो कितना है, नेगेटिव 25.27, उसके बाद क्या आ जाएगा 0। ठीक है, तो ये ऐसे ऊपर जाएगा। मुझे बताओ अकॉर्डिंग टू द टेबल क्या आना चाहिए, पैराबोला, पैराबोला क्यूब, बोलो अकॉर्डिंग टेबल क्या आना चाहिए, पैराबोला आना चाहिए। सो इट विल बी अ पैराबोलिक कर्व लाइक दिस। ठीक है, यहाँ पे देखो सब लोग, इट विल बी अ पैराबोलिक कर्व विच विल टेंड लाइक दिस। एंड देन यूडीएल का क्या आना चाहिए, inclined straight line like this which is this। clear, समझा, इजी एकदम। ठीक है, नाउ देयर आर पॉसिबिलिटीज कि तो ऐसा ही क्यों बनाया। ठीक है, नहीं क्वेश्चन समझा क्या मेरा, देखो मुझे क्यूब ही सॉरी पैराबोलिक ही क्यों बनाना है ना, मैं ऐसे भी बना सकता हूँ राइट, आई कैन मेक लाइक दिस ऑल्सो, राइट, व्हाई आई मेड लाइक दिस, क्या ऐसा कुछ नहीं, अभी नीचे ऐसा, इफ आई मेक इट लाइक दिस, ये भी पॉजिटिव से नेगेटिव ही जा रहा है ना, but why I made specifically like this? I want the answer from your side. You can think upon it, right? उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, यहां से यहां तक लेके गए। ठीक है, अंडरस्टूड। ये देखो कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे, ये P क्यों दिया मैंने, P is representing parabola, S is representing inclined straight line। ठीक है, अभी देखो ये जो पॉइंट है ये क्या हुआ, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ ना, तो दिस इज अ पॉइंट ऑफ, नो दिस इज अ पॉइंट ऑफ जीरो शेयर। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन किसे बोलेंगे, जब बेंडिंग मोमेंट साइन चेंज होगा फ्रॉम जीरो। ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है क्या, नहीं, इट्स अ शियर फोर्स डायग्राम। तो इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, शियर फोर्स जीरो हो रहा है। ठीक है, अभी ये पॉइंट अपने को लोकेट करना पड़ेगा, बिकॉज मैथमेटिकली इफ यू लुक एट द इक्वेशन या फिर डेरिवेशन, क्या किया था हम लोगों ने, df by dx is equal to w and dm by dx is equal to f। इसके हिसाब से मैक्सिमा मिनिमा करके शियर फोर्स जहां पे जीरो होता है, बेंडिंग मोमेंट वहां पे मैक्सिमम आता है। फिर से बोलूंगा, शियर फोर्स जहां जीरो होता है, बेंडिंग मोमेंट वहां पे मैक्सिमम होता है, एंड दैट वी विल गेट बाय द आंसर्स एज वेल। ठीक है, तो इसलिए वो पॉइंट मुझे लोकेट करना पड़ेगा। क्लियर हुआ, ठीक है, तो व्हाट एल्स इज टू लोकेट द पॉइंट ऑफ जीरो शेयर, कहां पे है, यहाँ पे है। ठीक है, अभी ये ध्यान से समझना, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या नींद आ रही है, इधर क्या है,